میرا ایفएससी کا بہت شاندار رزلٹ آیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے کسی اچھی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا، جبکہ رابعہ کے نمبر میرے مقابلے میں بہت کم آئے تھے، بلکہ وہ تو بڑی مشکل سے پاس ہوئی تھی۔ میں جب اسے خوشی بتانے گئی تو وہاں طوفان برپا تھا، پورے گھر میں آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ یتیم لڑکی جو تمہارا جھوٹا کھاتی ہے، تمہارے اترن پہنتی ہے، دیکھو نمبر پھر بھی اس نے تم سے زیادہ لے لیے۔ تم نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں ان کی باتیں سن کر ٹوٹ کر رہ گئی۔ ہمیشہ چچی میرے بارے میں ایسے ہی تلخ انداز میں بولتی اور میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی کمرے میں گئی اور رابعہ کو مبارکباد دی تو وہ بھی مجھ پر برس پڑی، کہنے لگی، اب تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گی؟ اب مجھ پر اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی تھی وہ بھی مجھے باتیں سنانے لگی۔ رابعہ کا سارا غصہ مجھ پر نکلنے لگا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ چچا آئیں تو انہیں اپنے رزلٹ کے بارے میں بتا کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی بات کروں۔ شام کو جب چچا آئے تو چچی انہیں سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی۔ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگلے دن جب میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی تو چچا نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم یونیورسٹی میں پڑھنے کی بات کر رہی ہو تو ہمارے خاندان کی لڑکیاں یونیورسٹی نہیں جاتی۔ تم نے جو کرنا ہے گھر میں رہ کر کرنا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو چچی غصے سے بولی، ہماری خاندان کی لڑکیاں بڑوں سے بحث نہیں کرتی، جاؤ کچن میں کام کرو۔ میں خاموشی سے روتی رہی، کچن میں چلی گئی اور کام کرنے لگی۔ بار بار آنسو بہ رہے تھے، میں بے دردی سے پہنچتی جا رہی تھی۔ بچپن سے میرے ساتھ ناانصافی ہی ہوتی آئی۔ اماں کے انتقال کے بعد ابو مجھے بدقسمت سمجھنے لگے۔ وہ کہتے تھے جب میں پیدا ہوئی تو ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی، ان کی پیاری بیوی ان سے بچھڑ گئی اور وہ اس کا ذمہ دار مجھے سمجھتے تھے۔ ابو ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر باہر کے ملک چلے گئے۔ میں نے سنا تھا انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی، مگر اللہ نے انہیں دوسری بیوی سے اولاد نہیں دی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ چچا کو فون کرتے اور ڈھیروں باتیں کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی پلٹ کر میرا حال تک نہ پوچھا، نہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں ہر کوئی میرے ساتھ برا ہی سلوک کرتا۔ جب آپ کو پرواہ نہیں تو باقی رشتے کیا پرواہ کرتے؟ چچا کے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود میں اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتی تھی، اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ میں روتے ہوئے یہی سوچتی رہتی تھی۔ کئی دن گزرے اور آہستہ آہستہ وہ زخم مدھم ہونے لگے۔ آگے بڑھنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ زندگی اب کیا رنگ دکھائے گی۔ میں نے سنا تھا کہ چچا میرے اور رابعہ کی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں اور رشتے دیکھ رہے ہیں، مگر رابعہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ رابعہ کو پڑھائی سے بہت لگاؤ تھا، یہ بات سب جانتے تھے، اس لیے کوئی اس کی بات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ ایک رات میں نے رابعہ کو کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تھی۔ رابعہ کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ تھا۔ میں جب کچن کی طرف گئی تو مجھے اس کے کمرے سے سرگوشیاں سنائی دی۔ وہ کسی لڑکے سے محبت جتاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ میں سن کر کانپ گئی۔ اگر چچا کو یہ پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں نے سوچا اسے سمجھاؤں، مگر پھر رک گئی۔ رابعہ تو مجھے کچھ سمجھتی بھی نہیں، اور اگر میں کچھ کہتی تو وہ چچی کے سامنے تماشا لگا دیتی، اس لیے میں خاموش رہی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میری زندگی کے بدترین دن شروع ہو چکے تھے۔ ایفएससी کے بہترین رزلٹ کی خوشی جیسے بجھ سی گئی۔ پڑھائی اور کالج جانے کا خواب مٹی میں مل گیا۔ ہر بار یہی طنز سننے کو ملتا کہ میں صرف کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی امید تھی، وہ یہ کہ ابو بیرون ملک ہونے کے باوجود میرے اخراجات کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے بھیج دیتے تھے۔ اگرچہ رقم بہت معمولی ہوتی مگر مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے وجود کی کوئی قیمت ہے، مگر یہ سوچ بھی غلط ثابت ہوئی۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ ابو جو بھی پیسے میرے لیے بھیجتے تھے چچا چچی وہ سب اپنے گھر پر خرچ کر لیتے۔ مجھے کبھی ایک روپیہ بھی نہیں ملا، الٹا مجھے یہ تانے سننے پڑتے کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ میں نے ایک بار ہچکچاتے ہوئے چچا سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، جب تک تم ہمارے گھر میں ہو تمہیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے یہاں صبر کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا، جبکہ رابعہ کے لیے بہترین کالج اور یونیورسٹی کا سوچا جا رہا تھا، حالانکہ وہ مشکل سے پاس ہوئی تھی۔ میں دن رات کچن میں کام کرتی رہتی اور دل میں صرف یہی سوچتی، کاش میرے ابو میرے پاس ہوتے۔ ایک رات جب میں کام ختم کر کے سونے ہی والی تھی کہ اچانک گھر میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ یہ چچی کی آواز تھی۔ میں فوراً باہر نکلی۔ چچا اور رابعہ بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ چچی کے کمرے میں داخل ہوئے تو فرش پر بیٹھی غصے سے وہ کانپ رہی تھی۔ وہ چیخیں مار کر کہہ رہی تھی، میرا سارا زیور غائب ہے، ابھی میں نے یہی رکھا تھا۔ سب حیران تھے مگر چچی کی نظر سیدھی مجھ پر تھی۔ انہوں نے فوراً الزام لگایا کہ یہ چوری میں نے کی ہے، کیونکہ ان کے بقول میرے علاوہ کسی کو زیور کی جگہ نہیں پتہ تھی۔ میں سن کر پتھر کی طرح جم گئی، میری زبان خشک ہو گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، چچی اللہ کو جان دینی ہے،
मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जेवर को हाथ भी नहीं लगाया। मैं आपके कमरे में भी गई नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चची का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो बोली, ड्रामा बंद करो। ये हरकत सिर्फ तुम जैसी लड़की ही कर सकती है। मेरी बेटी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। चचा खामोश खड़े थे। हमेशा की तरह वो चची के गुस्से के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। शायद वो भी मुझे शक की नज़र से देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनके टुकड़ों पर पलती हूँ, इसलिए वो कभी मेरी हमायत नहीं करते। चची ने फौरन मुझ पर हमला कर दिया। अभी पता चल जाएगा। मैं अभी तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें रोकती, चची और राबिया दोनों मेरे छोटे से कमरे में घुस आए। उन्होंने मेरे कपड़ों का, मेरा पुराना सामान, हत्ता के बिस्तर तक उलट पुलट कर रख दिया, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मेरे कमरे से जेवर तो दूर, मेरी मामूली सी चीजें भी बिखर कर रह गई थी। तलाशी लेने के बाद चची बाहर आई और उनके चेहरे पर लम्हे भर के लिए सुकून सा आया, मगर उनकी बदगुमानी खत्म नहीं हुई। उन्होंने जोर से कहा, इसने जेवर कहीं और छुपा दिया होगा, शायद किसी को दे दिया है। इतनी चालाकी से मेरे कमरे से निकाल कर कहीं और छुपा दे। इस घर में इसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। ये मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रही है। मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठ के और बेतहाशा रोने लगी। ये एक भयानक ख्वाब था जो हकीकत बन चुका था। पहले मैं बोझ थी, फिर नौकरानी, और अब मैं चोर बन गई। मेरे आंसू में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने में किसी ने जोर से कोई पत्थर रख दिया हो। उस घर में मेरा कोई सहारा नहीं था, यहाँ तक कि सच भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो रात मेरे लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थी, और मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि अब मेरा इस घर में रहना मजीद मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने बाप को याद कर रही थी। काश वो यहाँ होते तो मेरी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। चोरी के झूठे इल्जाम के बाद उस घर में मेरी हैसियत ना होने के बराबर हो चुकी थी। बात पर चची का तंज और शक मेरी रूह को जख्मी करता रहता। वो दिन भर मुझे कोसती रहती, हर चीज को हाथ लगाने से रोकती और बार बार कहती कि जल्द ही मेरा जुर्म साबित हो जाएगा। चचा शायद अब समझ चुके थे कि मैं सच कह रही हूँ, मगर चची के सामने कुछ भी बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। मैं रोजो शबो यही सोचती कि उसके ऐसी आज़ादी कैसे मिलेगी। पढ़ाई तो दूर की बात, अब तो यहाँ इज्जत की दो घड़ी भी मैसर नहीं थी। एक रात का वक्त था, तकरीबन 8 बजे होंगे। मैं किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी कि मेरी नज़र राबिया पर पड़ी। वो बड़े तजस्सुस और जल्दी में बाहर निकल रही थी। उसके कदमों में हल्की सी हड़बड़ाहट थी और वो चुप चुप कर छत की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मेरे जहन में फौरन वो रात घूम गई जब मैंने उसे किसी लड़के से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा। मुझे लगा ज़रूर कोई मामला है। चची चचा सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल पड़ी। जब मैं छत पर पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। राबिया अकेली नहीं थी। अंधेरे में भी मैंने साफ देखा कि एक लड़का उसके साथ खड़ा था। राबिया उसे धीमी आवाज में बातें कर रही थी। मुझे यकीन हो गया कि ये वही लड़का है जिससे वो फोन पर बातें करती थी। मैंने फौरन कदम बढ़ाया और उसके करीब जाकर सख्त लहजे में कहा, ये तुम क्या कर रही हो और ये कौन है? मेरे अचानक सामने आने से राबिया लड़का दोनों घबरा गए। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, मैंने राबिया का बाजू पकड़ा और कहा, नीचे चलो अभी। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर चाचा चाची को पता चल गया तो वो राबिया की जान ले लेंगे, मगर राबिया ने उल्टा रद्द अमल दिया। शायद उसे डर था कि मैं जाकर सब घर वालों को बता दूं। वो अचानक जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी ऊंची थी कि पूरा घर गूंज उठा। उसने फौरन उस लड़के की तरफ इशारा किया जो सीढ़ियों की तरफ भागने लगा था, और फिर उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि ये लड़की मुझे धक्के दे रही थी। मैं इसे रोकने आई थी तो इसने कहा कि वो सब कुछ बिगाड़ देगी और अब मुझे भी बर्बाद करने की धमकी दे रही है। चची और चाचा फौरन भागते ऊपर आए। उनके चेहरों पर खौफ और गुस्सा दोनों थे। जैसे ही छत पर पहुंचे तो उन्हें एक लड़के का साया तेजी से नीचे भागते हुए देखा। ये मंजर देखकर उनका शक फौरन मुझ पर गया। लड़का तो भाग निकला, मगर आबे ने अपना काम कर दिया था। उसने मेरी सारी नेकी को बुराई में बदल दिया। चची चीख कर कहने लगी, पहले चोरी, अब ये हरकत। तुमने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम जैसी लड़की से हमें यही उम्मीद थी, इसलिए तुम यूनिवर्सिटी जाने की जिद करती थी ताकि ये सब कर सको। मैंने चीख कर कहा, खुदा के लिए मेरी बात सुने, राबिया झूठ बोल रही है, ये इसका आशिक है। मैं इसे रोकने आई थी मगर मेरी आवाज़ किसी ने ना सुनी। राबिया रोती हुई मजलूम बनकर चची के साथ खड़ी थी और हर बात मेरे खिलाफ मजबूत करती जा रही थी। चची ने मेरे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आई। उनका गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो कह रही थी, आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। चची ने मुझे धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया। मैं रात के अंधेरे में अपने मामूली कपड़ों में सड़क पर खड़ी थी और मेरे आंसू बह रहे थे। दरवाज़ा जोर से बंद हो चुका था। मैं दरवाजे से टकराती रही, चीखती रही कि ये झूठ है, खुदा का खौफ करो, मगर कोई जवाब न मिला। मैं रो रही थी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई सहारा नहीं था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं इसी वक्त मर जाऊं। मैं सड़क किनारे बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर अपने बाप को याद करने लगी। सोच रही थी काश वो एक बार मुझे पूछ लेते, काश आज वो यहाँ होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। उसी लम्हे मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक शानदार लग रही थी। मैंने डर के मारे सर उठाया। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला।
वो महंगे लिबास में मलबूस था मगर चेहरे पर गम और सदमे के साए थे। मैंने फौरन पहचान लिया, वो मेरे वालिद थे। वो मुझे इस हालत में देखकर सकते में आ गए। शायद वो मुझसे मिलने आए थे। जब उन्हें मेरे साथ होने वाला जुल्म पता चला तो उनकी आंखों में गुस्सा और दुख भर गया। चची चाचा जो दरवाजे के पीछे से सब देख रहे थे, फौरन बाहर आ गए। उनके चेहरे पर खौफ नुमाया था। चाचा ने खुद को संभालते हुए फौरन झूठ गढ़कर कहा, भाईजान, ये लड़की बदकिस्मत है, इसने हमारी नाक कटवा दी। हमने इसे एक लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आपकी इज्जत का सवाल था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। मेरे वालिद ने एक नज़र चचा पर डाली और फिर मेरी तरफ देखा। मेरे आंख मैं आंसुओं में भीगी जमीन पर बैठी थी। उन्होंने कुछ कहे बगैर मुझे सहारा दिया और गाड़ी में बिठा लिया। चचा को सिर्फ एक जुमला कहा, अब बहुत हो चुका, और भी मुझे अपने साथ ले गए। मगर उनकी खामोशी मोहब्बत भरी नहीं थी। वो अब भी मुझसे नाराज थे। उन्हें लगता था कि शायद मैंने कोई गुनाह किया है। मैंने उनकी इज्जत का पास नहीं रखा। उनकी खामोशी मेरे लिए हजार बातों से ज्यादा तकलीफ देती। वो मुझे ले तो गए मगर उनके चेहरे पर दुख और सवाल दोनों लिखे थे। मैं जानती थी कि वो घर से निकाले जाने पर सदमे में है, मगर उससे भी ज्यादा वो इस बात से नाराज थे कि चचा चची ने मुझ पर लड़के के साथ पकड़े जाने का इल्जाम लगाया था। उनके लिए इज्जत और खानदानी नमूज सबसे मुकद्दम थी, और वो यही समझ रहे थे कि मैंने उनकी इज्जत का पास नहीं रखा और गुनाह किया। उन्होंने घर आकर मुझे कमरे में बिठा दिया, मेरे करीब ही नहीं आए और मेरे कमरे में आकर एक सख्त ठंडे लहजे में बात की। मैंने सुना है कि तुमने कुछ गलत हरकतें की हैं। तुम्हारी चची ने चोरी का इल्जाम भी लगाया, और अब कल रात का वाकया। मैंने रोते हुए तमाम तर तकलीफ़ों का जिक्र किया जो मैंने वहाँ झेली। चची का मुझ पर शक, राबिया की झूठी तोहमत, सब कुछ। मैंने कहा, अब्बू, आपको अल्लाह का वास्ता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। राबिया ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम तराशी की। मेरे वालिद ने मेरी बात सुने बगैर मेरी तरफ एक नज़र डाली। तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन जब सगा बाप तुम्हें घर में नहीं रख सका तो गैरों ने क्या रखना था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी बाकी ज़िंदगी की इज्जत और कारोबार पर कोई हरफ आए। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए यहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें शादी करके जल्द अज जल्द इस मामले से फारिग करना चाहता हूँ। ये खानदान में अब मजीद कोई मसला पैदा नहीं करेगा। ये मेरे लिए दूसरा बड़ा सदमा था। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब देखा और अब मुझे बगैर किसी सफाई के, बगैर किसी तस्दीक की और अपनी मर्जी के खिलाफ बस इज्जत बचाने की बेंच चढ़ाया जा रहा था। मैंने एहतजाज करने की कोशिश की, मगर मेरे वालिद ने मुझे हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। बहस करने की इजाज़त नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत मुअज़्ज़ज़ कराना देख रहा हूँ। अगर तुमने मजीद एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें यही छोड़कर वापस चला जाऊँगा, और फिर तुम खुद जिम्मेदार होगी। अबू ने चंद ही हफ्तों में मेरे लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश कर लिया और मेरी शादी तय कर दी गई। वो आदमी उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, मगर एक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था। ख़ानदान वालों ने सिर्फ ये बताया कि वालदा के इंतकाल के बाद मेरी परवरिश चचा के घर हुई, और अब पढ़ाई से ज़्यादा मैं घर बसाने में दिलचस्पी रखती हूँ। मेरी शादी सादगी से कर दी गई, जहाँ मेरे वालिद के चेहरे पर किसी भी तरह की खुशी ज़ाहिर नहीं हो रही थी। वो मुझे बेटी नहीं बल्कि अपनी इज्जत की हिफाजत की नज़र से देख रहे थे। शादी के बाद मैं एक नए घर और एक नई ज़िंदगी में आ गई, मगर मेरे दिल में उस झूठे इल्ज़ाम और मेरे बाप की नाराज़गी का बोझ हमेशा रहा। शादी के चंद साल गुजर गए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई ज़िंदगी में सुकून हासिल करना शुरू कर दिया। मेरे शोहर एक अच्छे इंसान थे और मुझे उस नए घर में वो इज्जत मिली जो मुझे कभी चचा के घर नहीं मिली थी। मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ख्वाब तो पूरे नहीं हुए, मगर मैंने अपने घर की जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो और सामने चचा और चची को खड़ा देखकर मैं रूह काम गई। वो बूढ़े, थके और परेशान लग रहे थे। उनके चेहरों पर वो तकब्बुर नहीं था जो कभी हुआ करता था। वो दोनों मेरे सामने झुके। चची ने हाथ जोड़ दिए और उनकी आंखों में आंसू थे। चची ने रोते हुए कहा, बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमें वो तल्ख और जालिम रवैये इख्तियार करने के लिए माफ़ कर दो जो हमने तुम्हारे साथ रखा। मैं हैरान और खामोश खड़ी थी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। चची ने रोते हुए पूरी कहानी बताना शुरू कर दी, जिसे सुनकर मेरी टांगों से जान निकल गई। बेटी, उस रात हमने तुम पर जो कुछ इल्ज़ाम लगाया वो सब झूठ था। तुम बेकसूर थी। हमने अपने दिल की आंखें बंद कर रखी थी। हमारे घर की रसवाई तुम नहीं बल्कि हमारी अपनी बेटी राबिया थी। चचा ने बात संभाली। हमने तुम्हें घर से निकालने के कुछ ही महीनों बाद राबिया की शादी एक अच्छे घर में कर दी ताकि उसका आशिक दोबारा उसका पीछा न करे, मगर वो खुश नहीं थी और सिर्फ 2 साल बाद वो घर से भाग गई। ये सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। वो लड़की जिसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया वो खुद अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। चची ने बताया, जब वो भागी तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। उसका आशिक भी एक फरेबी निकला और उसे छोड़कर चला गया। बहुत अरसे की जिल्लत और रुसवाई के बाद जब वो हमें मिली तो वो टूट चुकी थी। हमने उस पर बहुत गुस्सा किया, मारा पीटा, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई तब उसने ही सबको बताया। चची की आवाज़ लरस रही थी। उस रात छत पर वो खुद थी। वो लड़का उसका आशिक था।
जब तुमने उसको पकड़ लिया तो उसने तुम्हें फंसाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हो। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह थी कि जिस ज़ेवर की चोरी का इल्ज़ाम हमने तुम पर लगाया, वो ज़ेवर भी तुम्हारी बदनामी के फ़ौरन बाद राबिया के बक्से से मिला। मेरे सामने सब कुछ ज़ाहिर हो चुका था। मैं बेगुनाह थी और मेरी सारी ज़िंदगी उनके जुल्म की वजह से बदल गई। चाचा ने सर झुकाकर कहा, बेटी, जब से हमें ये सच पता चला हम जिल्लत की ज़िंदगी गुजारे हैं कि तुम्हारे वालिद के पास। उन्हें सब बताया और तुम्हारे बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि तुम बेकसूर थी, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए बैरून मुल्क चले गए, शायद नदामत के मारे और तुमसे आंखें ना मिला पाने की वजह से। हमने फैसला किया कि मरने से पहले तुम्हारे सामने आकर माफ़ी मांग ले। हम जानते हैं कि हमारी माफ़ी बहुत छोटी है, मगर प्लीज़ खुदा के लिए हमें दिल से माफ़ कर दो। मैंने उन दोनों की तरफ देखा। वो शर्मिंदा थे और अपने किरदार के बोझ तले दबे हुए थे। मैं जानती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में सज़ा को झेल रहे हैं जो उन्होंने मुझ पर मुसल्लत की थी। मैंने एक लंबी सांस ली और दिल से उनके लिए दुआ करते हुए उन्हें माफ़ कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहे, मगर ये गम के नहीं बल्कि तकमील इंसाफ के थे। मैंने कहा, अल्लाह आपको हिदायत दे, मैंने आपको माफ़ किया। चाचा चाची रोते हुए वहाँ से चले गए, मगर वो जाते जाते मेरी ज़िंदगी के उस बड़े बाप पर हकीकत की मोहर लगा गए कि मैं पाक दामन और बेकसूर थी। मुझे सुकून मिला, मेरी बेगुनाही साबित हो गई। मैंने फ़ौरन अपने शौहर को फ़ोन किया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्हें मुझे तसल्ली देकर कहा कि वो हमेशा से जानते थे कि मैं सच कह रही थी। उसके बाद मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया और पहली बार हमने खुलकर बात की और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मेरी ज़िंदगी में अगरचे यूनिवर्सिटी का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, मगर मेरे दिल का सबसे बड़ा ज़ख्म, बदनामी का दाग अब धुल चुका था। नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद सबक आमूज़ कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।